So let's take the second example of centroid. In this example, what do we have? So there is a semicircle, there is a quarter circle, and a shape that is left. उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. एक पार्ट है स्क्वायर, दूसरा पार्ट है ट्रायंगल. मैंने यहाँ पे नाम M रख दिया है, ठीक है. So if I observe here OMBD, that's a square. AMB, that's a triangle. Then there is a semicircle AEBA and a quarter circle DBCD. So all these four shapes, all these four shapes that I want here, इनको अगर combine कर दिया तो अपने को पूरा का पूरा solid पता चल जाएगा. The plane line that I have. So all these four shapes are positive areas. सारे areas रखने हैं मुझको. सब एरियाज को ऐड करेंगे तो जाके शेडेड पोर्शन मिलने वाला है. तो नन ऑफ द एरियाज आर नेगेटिव हियर, ऑल एरियाज आर पॉजिटिव. फर्दर द एंटायर डायग्राम इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो x बार y बार भी सबका क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है. तो चलो एक एक सॉलिड लेंगे, एक एक प्लेन लैमिना लेंगे और उसका सेंट्रोइड लिखते जाएंगे. तो सबसे पहले जो आसान वाला है वो ले लेंगे, दैट्स अ स्क्वायर, ठीक है. स्क्वायर ले लेंगे यहाँ पे. So as I already told you, whatever diagrams are given, you draw them with respect to the original x and y axis. जो भी तुम्हारा ओरिजिनल एक्स और वाई एक्सिस है उसके साथ ही लेंगे. मतलब जो हमारा स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है वो डायरेक्टली कहाँ पे रखा है, उस स्क्वायर को डायरेक्टली एक्स और वाई के ऊपर रख दिया है, OMBD. सो मैं यहाँ पे एक स्क्वायर बना देता हूँ. स्क्वायर का डायमेंशन कितना है, 40 सेंटीमीटर, isn't it? स्क्वायर का डायमेंशन इज 40 सेंटीमीटर. देयर इज O, then there is M, then B and D, ठीक है. So I will take this square. इसका सेंट्रॉइड कहाँ पे आएगा, इसका सेंट्रॉइड आएगा exactly at the center, the middle points of the sides, ठीक है. ये उसका सेंट्रॉइड हो गया. ये सबसे पहला डायग्राम है, इसे सुनो G1 बोल देता हूँ, ठीक है. Then I can see that the horizontal distance is x1 bar and the vertical distance is y1 bar, isn't it? What the distances are given to us? The distance is 40 centimeter here. So OM का length is 40 centimeter and OD का length is also 40 centimeters. दोनों 40 centimeters है, ठीक है. तो x1 बार का वैल्यू और x1 बार का वैल्यू और y1 बार का वैल्यू दोनों कितना आ जाएगा, 40 divided by 2, that is 20 centimeter. So first of all I write the area. A1 लिख देते हैं. Since it's a square, इसका एरिया साइड स्क्वायर रहता है. So side square, which is 40 का स्क्वायर, 40 square, it is going to be 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है. So A1 पता चल गया मुझको. उसके बाद x1 बार निकाल लेंगे. Let's get x1 bar. It is going to be 40 upon 2, which is 20 centimeter. And finally, let us get y1 bar also, and that is also 40 upon 2, which is again 20 centimeter. ठीक है. तो ये हो गया अपना पहला सॉलिड, पहला जो प्लेन लैमिना है, that was a square, ठीक है. दूसरा हम ट्रायंगल ले लेंगे. जो भी आसान डायग्राम्स है पहले उनको कंसीडर करेंगे. Let's take a triangle. Again I am telling you, make the diagrams with respect to the original x and the y axis. मतलब जहां भी तुमको डायग्राम दिख रहा है ओरिजिनल डायग्राम में exactly उधर ही उसको बनाओ, x and y. So have you noticed that this triangle is actually at a distance of 40 centimeter placed ahead? देखा ना, ये जो OM का लेंथ है 40 सेंटीमीटर, उससे आगे रखा हुआ है ना. अच्छा people, do you know what is length of AM? Length of AM in the diagram it is not given to us. डायग्राम में बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है. Can you suggest me what could be the angle MAB? अगर मैंने पूछा MAB का एंगल बताओ, is it given anywhere? एंगल MAB का वैल्यू दिया है क्या कहीं पे भी? कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है. डायग्राम में MAB का एंगल नहीं दिया है. मुझे सिर्फ AB का लेंथ पता है, कितना है वो, 40 सेंटीमीटर है, समझा. If you notice very properly, observe very carefully that AB का लेंथ is 40 centimeter and BM का लेंथ is 40 centimeter. We know, see 40 centimeter. BM का लेंथ is 40 centimeter. AB का लेंथ is 80 centimeter. AB का लेंथ is 80 centimeter and BM came 40 centimeter. Is BM half of AB? BM is 40,
AB is 80 and I know it is a right angle triangle. It is observed right angle triangle. You can see here it's a right angle triangle. And BM का length is half of AB का length. How much angle MAB has to be there? It has to be 30 degrees. बराबर ना? 30 क्यों आया? क्योंकि MB का length AB के length से आधा हो गया. So side opposite to 30 degrees is half ना of the hypotenuse. So AB was the hypotenuse and MB का length is coming half of the hypotenuse. दिख रहा है मुझे डायग्राम से, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो it's a mandatory condition that this angle A has to be 30 degrees. जैसे पता चल गया ये 30 है 90 है, तो ऑब्वियसली ये एंगल 60 डिग्री हो गया. इसका मतलब है ट्रायंगल ए एंड बी कौन सा टाइप का ट्रायंगल मिला? इट इज अ 30 60 90 ट्रायंगल. कैसे वो दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना? यू हैव टू राइट दी स्टेटमेंट्स. तो आपको क्या पता चला यहाँ पे? MB का जो लेंथ था इट वाज हाफ ऑफ AB का लेंथ एंड AB इज द हाइपोटेनस. सो हाफ ऑफ हाइपोटेनस, therefore I can say triangle AMB became a 30 60 90 triangle. Is that part understood to everyone? तो अब मैं AM का लेंथ निकाल सकता हूँ, ठीक है? AM का लेंथ पता चल जाएगा. It is the side opposite to 60 degrees. So AM is going to be √3 upon 2 times the hypotenuse because it is side opposite to 60 degrees. So √3 upon 2 times the hypotenuse was AB and AB का length was 80 centimeter because it was the diameter of the semicircle. So this is 80. So I get here 40 √3 centimeter. So AM का length I got 40 √3 centimeter and I already had the length of BM. समझा? तो अब अगर जब ये डायग्राम बनाओ, so डायग्राम with respect to original x and y ही बनता है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने हाइट लिया 40 सेंटीमीटर और थोड़ा आगे आ गया 40 सेंटीमीटर यहाँ पर भी, ठीक है? और यहाँ से बन गया अपना ट्रायंगल. सबको समझा क्या? जहां पर भी तुमने डायग्राम को प्लेस किया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, एग्जैक्टली उधर ही बनाने का. सो स्टूडेंट्स, आई हैड व्हाट वैल्यू ऑफ दिस डिस्टेंस? दिस वाज 40 सेंटीमीटर एंड दिस वैल्यू वाज, we have calculated, it was 40 √3 centimeter. 40 √3 centimeter, ठीक है? And the height was 40 centimeter here. So do you remember when you have a triangle? अगर अपने पास ट्राइंगल है, ठीक है ना? तो ट्राइंगल का सेंट्रोइड किधर आता है पता है ना? ट्राइंगल का सेंट्रोइड उसके परपेंडिकुलर साइड से 1/3 डिस्टेंस पे रहता है, ठीक है? ये उसका परपेंडिकुलर साइड है, ये उसका परपेंडिकुलर साइड है, यहाँ से 1/3 डिस्टेंस बना देगा. मतलब अगर मुझे सेंट्रोइड लोकेट करना है तो मैं 1/3 डिस्टेंस बनाऊंगा. ये हो गया सेंट्रोइड. सिंस इट्स द सेकंड डायग्राम, आई वांट टू डिनोट इट एज G2. तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है, अब देखो सेंट्रोइड G2 देखो कहां पे? ये जो छोटा वाला डिस्टेंस तुम यहाँ पे देख रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का 1/3 रहेगा. ये जो टोटल लेंथ है इसका 1/3 रहेगा. ये टोटल लेंथ कितना है? 40 √3 है. इसका 1/3 करना है मुझे. सो आई एम गोइंग टू मार्क दिस डिस्टेंस as 1/3 of 40 √3. This distance is 1/3 of 40 √3. ठीक है ना? Let's get this answer, whatever the value comes. So it is going to be 40 √3 upon 3. तो value निकाल लेते हैं हम लोग. So that's 40 into √3 divided by 3. So the answer came 23.094. So let's write it as 23.1. ठीक है ना? 23.1 करके लिख देंगे, ठीक है? So I got a value here as 23.1 सेंटीमीटर. ये छोटा डिस्टेंस मिला 23.1 सेंटीमीटर. उसी तरह ये वाला छोटा डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है? लेट्स गेट दिस स्मॉल डिस्टेंस हियर. ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है ना? ये डिस्टेंस निकालेंगे. ये इसका वर्टिकल डिस्टेंस का 1/3 हो जाएगा. वर्टिकल डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर, उसका 1/3 हो गया. तो दिस इज गोइंग टू बी 40 upon 3 सेंटीमीटर. इफ यू वांट यू कैन राइट द वैल्यू, अदरवाइज लीव इट. अब सेंट्रोइड अगर लोकेट करना है तो सेंट्रोइड का डिस्टेंस ओरिजिनल डायग्राम के एक्स और वाई एक्सिस से ही गिना जाएगा. ओरिजिनल डायग्राम देखने का, ये है ओरिजिनल डायग्राम, उसका ओरिजिनल एक्स और वाई ये यहाँ पे बना है. और मेरा ट्रायंगल देखो थोड़ा सा आगे प्लेस्ड है. तो सेंट्रोइड का डिस्टेंस अगर मैंने y एक्सिस से लिया, y एक्सिस से जो डिस्टेंस आएगा वो x बार रहेगा.
सेंट्रॉइड का डिस्टेंस y एक्सिस से, सो डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस इज x बार, या फिर ऐसा बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज x कोऑर्डिनेट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज x कोऑर्डिनेट। तो ये जो डिस्टेंस है ये हो गया x2 बार। सो पीपल हैव टू ऑब्जर्व दैट x2 बार विल बी एक्चुअली दिस 40 सेंटीमीटर प्लस ये छोटा वाला डिस्टेंस which is 23.1 सेंटीमीटर। मतलब सबसे पहले तो मैं एरिया लिखूंगा ऑब्वियसली, सो राइट एरिया हियर A2, इट इज हाफ बेस इनटू हाइट, सो बेस इज 40√3 इनटू हाइट इज 40, so I'm going to get answer here as this 40 and 2 cancel, that's 20 and 40 becomes 800√3 centimeter square. So I'm going to keep it simple, 800√3 centimeter square. That was A2 का एरिया। x2 बार भी पता चल गया हमको, isn't it? We have already noted that x2 बार क्या मिलने वाला है मुझको? x2 bar is this 40 centimeter plus एक छोटा वाला distance 23.1. So I'll write here 40 plus 23.1, it's going to be 63.1 centimeter. समझा? 63.1 centimeter हो गया। Let's get y2 bar also. So students, have you observed y2 bar is this 40/3 centimeter का value? ये छोटा वाला value 40/3 centimeter। तो मैं यहाँ पे y2 bar भी लिख देता हूँ। So y2 bar is 40/3 centimeter. No need to simplify it. Then leave it as it is 40/3. दो डायग्राम हो गए मेरे। तीसरा और आसान वाला डायग्राम ले लेते हैं। आसान वाला डायग्राम है ये क्वार्टर सर्कल। लेट्स टेक द क्वार्टर सर्कल हियर, द थर्ड वन, ठीक है। सो तीसरा डायग्राम हमारा है क्वार्टर सर्कल, ठीक है। सो क्वार्टर सर्कल के लिए अगेन मैं वापस बता रहा हूं, देखो ओरिजिनल x और y बनाओ एंड देन विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल x एंड y वेयर योर डायग्राम इज प्लेस्ड यू मेक इट देयर। तो डायग्राम किधर देखा तुमने, ये 40 सेंटीमीटर ऊपर रखा है ना उसने, क्वार्टर सर्कल को रखा कहां पे, 40 सेंटीमीटर ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। सो ये 40 सेंटीमीटर ले लिया मैंने डिस्टेंस और इसके ऊपर रखा है तुमने सेमी सर्कल। सपोज मैंने यहां पे ले लिया, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज 40 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लिया मैंने और इसके ऊपर तुमने क्या रख दिया, क्वार्टर सर्कल। तो चलो यहां पे क्वार्टर सर्कल बना देते हैं। लेट्स मेक अ क्वार्टर सर्कल हियर, ये लो, ये बन गया क्वार्टर सर्कल। Now you should remember, students, formulas are very important, ठीक है ना। सेंट्रॉइड का जितने भी स्टैंडर्ड शेप्स है, स्टैंडर्ड शेप्स का सेंट्रॉइड का फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। क्वार्टर सर्कल के लिए जो तुम्हारा सेंट्रॉइड रहेगा वो उसके रेडियस से 4r/3 दूर रहता है। रेडियस आर दीज द रेडियस, these are the radius of this quarter circle। इनसे कितना दूर रहेगा, 4r/3। मतलब अगर मैंने यहाँ पे दो लाइन बना दिया तो सपोज ये हो गया तुम्हारा सेंट्रॉइड G3। सो ये जो छोटा डिस्टेंस है ये कितना रहेगा, 4r/3। फिर ये जो छोटा डिस्टेंस है ये दोनों 4r/3 रहेगा। सो दिस स्मॉलर डिस्टेंस इज 4r/3, so I'll write it down here, 4r/3, whereas this distance is also 4r/3. Now, do you know that this quarter circle had what radius, 40? So 4r/3, that means radius is 40 here, 40 into 4, that's 160/3. So ये वाला वैल्यू हो जाएगा 160/3, and obviously ये जो 4r/3 है ये भी कितना हो जाएगा, 160/3, ठीक है, समझा। लेकिन ये x बार y बार है क्या, तो देखना पड़ेगा मुझे ये सच में x बार y बार है क्या। x बार कौन रहेगा, डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रॉइड फ्रॉम द y एक्सिस, ये है ना y एक्सिस, देखो यहाँ पे, और ये तुम्हारा सेंट्रॉइड है G3। इज दिस छोटा वाला डिस्टेंस नथिंग बट x3 बार ओनली, यही है ना डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रॉइड फ्रॉम द y एक्सिस। मतलब x3 बार डायरेक्टली कौन है, 4r/3। लेकिन y3 बार बोल सकता हूं क्या मैं, 4r/3 है। y3 बार मतलब क्या, डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रॉइड फ्रॉम द x एक्सिस। ये x एक्सिस यहाँ पे है, सेंट्रॉइड यहाँ पे है, पूरा डिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो थोड़ा और आगे एक्सटेंड कर लो, वाज दिस स्मॉल डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर और उसके बाद ये 160/3। तो ये टोटल डिस्टेंस कौन है, टोटल डिस्टेंस y3 बार है और एक छोटा वाला डिस्टेंस x3 बार है, समझा ना। तो मेरे पास x3 बार और y3 बार पता चल गया। So I would write first of all area,
एरिया, ठीक है ना। एरिया क्या है, ये क्वार्टर सर्कल है, क्वार्टर सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, सो पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, so pi into what's the value of radius, radius was 40, so pi into 40 उसका स्क्वायर अपॉन 4, so let's simplify this, ठीक है ना, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, so I'm going to get 40 का स्क्वायर into pi divided by 4, so I get 400 pi, let's keep 400 pi there, ठीक है ना, उसको हम लोग 400 pi ही रख देंगे, तो मुझे वैल्यू मिलेगा दिस इज 400 pi सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट्स गेट x3 बार आल्सो। सो स्टूडेंट्स x3 बार क्या था, ये छोटा वाला डिस्टेंस डायरेक्टली x3 बार हो गया था, और ये छोटा डिस्टेंस 4r/3 pi था, और उसका वैल्यू 160/3 pi मिल गया था मुझको। सो लेट्स सेट x3 बार एज 160/3 pi सेंटीमीटर। देयर इज एब्सोल्यूट नो नीड टू स्टार्ट सिंपलीफाइंग दिस वैल्यूज, यू कैन लीव इट एज इट इज देयर, ठीक है, यू कैन स्ट्रेट अवे यूज दिस वैल्यूज इन द कैलकुलेशन फाइनली। तो ये हो गया x3 बार, चलो और y3 बार निकाल लेते हैं, ठीक है, y3 बार निकाल लेते हैं, तो y3 बार क्या आने वाला है 40 सेंटीमीटर प्लस 4r/3 pi, सो दैट्स 40 सेंटीमीटर प्लस 4r/3 pi। इसको सिंपलीफाई कर देंगे, ये 4r/3 pi का वैल्यू अपने पास कितना था, इट वाज 160/3 pi, ठीक है, तो इसको सिंपलीफाई करेंगे, ये थोड़ा बड़ा वैल्यू है, समझा, तो इसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे, 40 plus 160/3 pi, so the value comes 56.9765, ठीक है, तो 56.9765, you can approximately take it as 57 also, 56.9765 दिया है, तो it is 56.9765 which is almost 57 centimeters। सबको समझा क्या, ये देखो x3 बार हो गया, y3 बार हो गया। अब सबसे चैलेंजिंग जो डायग्राम बचा है वो है सेमी सर्कल, वो इंक्लाइंड सेमी सर्कल है, समझा। सो व्हाट वील डू इज फर्स्ट वील कॉपी दीस थ्री पार्ट्स, दिस वर द स्टैंडर्ड शेप, वेरी इजी वंस, एंड देन आफ्टर सम टाइम वी विल सी द सेमी सर्कल। सो फर्स्ट आई वांट यू टू कॉपी डाउन दीस थ्री डायग्राम्स वेरी प्रॉपर्ली, ठीक है, चलो। सो व्हाट वी हैव डन सो फार इज वी हैव गॉट the answers for three standard shapes, ठीक है, पहला हमने स्क्वायर देखा, फिर ट्रायंगल देखा, और फिर सेमी क्वार्टर सर्कल देखा। Now because there is less space available, what I do is I remove these two parts, I write the answers here and then continue with the last part, ठीक है। So when we need to find x bar and y bar, we will take the values directly from here and put up in the formula. So I'll remove this part here and next diagram as well, and I'm going to just keep the answers, ठीक है। सो आंसर्स में देखो क्या क्या है मेरे पास, सेकंड वाला जो एरिया है, जो सेकंड डायग्राम है उसका एरिया है 800√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो आई राइट इट डाउन हियर 800√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन आई हैव x2 बार which is 63.1 centimeter, so I write it here 63.1 centimeter, and finally I have y2 bar, it is 40/3 centimeter. So these were the values for the second diagram, ठीक है ना। तो चलो इसको निकाल देता हूँ मैं यहाँ से। Let's take the last one, which is A3. That was for the quarter circle. So A3 का value is 400 pi centimeter square. 400 pi centimeter square. Then there is x3 bar. x3 bar, the value came 160/3 pi centimeters. 160/3 pi centimeters. And finally, I got y3 bar, which is approximately 57 centimeters. So these all values we had for our three standard shapes. ठीक है, चौथा जो स्टैंडर्ड शेप है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको बहुत अच्छे से समझेंगे, एंड एज आई सेड लॉट ऑफ ज्योमेट्री विल बी इन्वॉल्व्ड इनटू दैट पर्टिकुलर डायग्राम, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट वन, द लास्ट डायग्राम। अब देखो सेमी सर्कल है, प्रीवियसली आल्सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू सेमी सर्कल का सेंट्रॉइड उसके लाइन ऑफ सिमेट्री पे ही आएगा, तो जहां पर भी सेमी सर्कल को तुम आधे में कट कर सकते हैं इक्वल पार्ट्स में, वहां पे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर दो। सो ऑब्वियसली लाइन ऑफ सिमेट्री हैज टू पास थ्रू इट्स सेंटर, सेंटर से पास होगा और सेमी सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो चलो ये मैंने ड्रॉ कर दिया, देखो ये कौन है, लाइन ऑफ सिमेट्री, समझा, दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। सो आई राइट इट डाउन हियर, दिस इज लाइन ऑफ
सिमेट्री। ठीक है, अब सेंट्रॉइड कहां पे लाई करेगा? इट विल लाई ऑन द लाइन ऑफ सिमेट्री, बट एट व्हाट डिस्टेंस? 4r/3π फ्रॉम द डायमीटर। तो डायमीटर लोकेट करो, डायमीटर कौन है? AB है, तो यहां से कितना डिस्टेंस ऊपर रहेगा? 4r/3π। तो चलो उसको भी लोकेट कर देता हूं मैं। सो पीपल, सपोज मैंने यहां पे लोकेट कर दिया, ठीक है ना, मैंने सेंट्रॉइड यहां पे लोकेट कर दिया, तो ये हो गया तुम्हारा G4, क्योंकि चौथा डायग्राम चालू हो चुका है, G4 हो गया। ठीक है, तो अगर मैंने इस मिड पॉइंट को M नाम रख दिया, ओके, M इज ऑलरेडी गिवन, सो आई नेम इट एज N, इसका नाम मैंने N रख दिया, तो N से लेके G4 तक का जो लेंथ है, N to G4, ये लेंथ कितना मिलेगा अपने को? NG4, this length is going to be 4r/3π। ठीक है, रेडियस कितना है इसका? 40, इसका रेडियस 40 है, तो 4 into 40, so that's 160/3π। मतलब G4n का वैल्यू कितना मिला अपने को? G4n का वैल्यू मिला 4r/3π, r was 40, so 160/3π। तो मैं यहां पे लिख देता हूं G4n का वैल्यू मिला 160/3π सेंटीमीटर्स। ठीक है ना, ये G4n का वैल्यू मिला, लेकिन ये G4n का वैल्यू एट दिस मोमेंट इज नॉट एबल टू गिव मी द वैल्यूज ऑफ x बार एंड y बार। x बार y बार ध्यान से लोकेट करेंगे। पहला सेंट्रॉइड का डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, ये y एक्सिस है, इधर से जो डिस्टेंस गिनेंगे, द डिस्टेंस दैट इज काउंटेड फ्रॉम द y एक्सिस, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? x बार, एंड द सेंट्रॉइड का डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस इज व्हाट? y बार। मतलब अगर मैंने ये G4 से एक वर्टिकल लाइन बना दिया, सी आई विल ड्रॉ वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन बना दिया, ठीक है, व्हाट आई डू इज ये 40 सेंटीमीटर जो रेडियस है, ठीक है, इसका डायमेंशन मैं यहां से निकाल देता हूं, सो दैट द डायग्राम लुक्स स्लाइटली कंफर्टेबल। ठीक है, तो मैंने यहां पे ये 40 सेंटीमीटर जिसका रेडियस है वो निकाल दिया। तो मैंने क्या किया? G4 से लेके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर है, ये जो लेंथ है, ये तुम्हारा होगा y4 बार। Did you understand? वर्टिकल डिस्टेंस इज y4 बार। ये डिस्टेंस कहां से गिना है मैंने? x एक्सिस से गिना है। ठीक है, उसी तरह अगर मैंने ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बना दिया, लुक एट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हियर, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये क्या हो जाएगा? Will this be x4 bar? The distance that is counted from the y-axis, the horizontal distance becomes the x coordinate. ये x4 बार हो गया, तो मुझे चाहिए ये बड़ा सा डिस्टेंस x4 बार, और फिर ये वाला डिस्टेंस which is y4 बार। Focus properly now. What I'm going to do here is, ये जो n है, n इधर से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये जो G4 में से जो लाइन निकला था उसके ऊपर। ठीक है, G4 में से जो लाइन निकला उसके ऊपर मैंने n से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो यहां पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने, ये तो राइट एंगल हो जाएगा 90 डिग्रीज। वी हैव टू फोकस एंटायरली ऑन दिस ट्रायंगल। ठीक है, चलो इसका ये जो पॉइंट है, इसका नाम मैं P रख देता हूं। नाउ लेट अस फोकस ऑन ट्रायंगल G4PN। G4PN समझा, इस ट्रायंगल पे फोकस करेंगे, G4PN। डिड यू नोटिस ये जो एंगल A है, ये 30 डिग्रीज है, यहाँ पे ये 30 डिग्रीज है। लुक एट दिस NP एंड द x axis, आर दे पैरेलल? NP एंड द x axis पैरेलल। दिस AN becomes a transversal, AN becomes a transversal, so can I see a Z here? PNA and then here सी Z बन गया, मतलब ऑल्टरनेट एंगल्स मिलेगा ना मुझको। अगर ये एंगल 30 डिग्रीज है, तो ये जो छोटा सा एंगल यहाँ पे बन रहा है, देखा कौन सा एंगल? PNA, ये भी 30 हो जाएगा। और अगर ये 30 हो गया, तो अब मुझे बताओ ये बाजू का एंगल जो है उसके, should it be 60 degrees? This was already 90, so it's a common sense that the remaining angle becomes 30 degrees. So what kind of triangle is triangle? NPG4, 30, 60, 90 triangle। थोड़ा डायग्राम को मैं एनलार्ज कर देता हूं यहाँ पे, ताकि समझ में आ जाए हम क्या कर रहे हैं वहां पे। So मेरे पास है G4N। Do I have the value of G4N people? G4, this is N and this is P, तो मुझे ये वैल्यू मालूम है ना G4N का, is it 160/3π? This was 160/3π, you have that value, isn't it? This was 4r/3π, observe the diagram. Then
this angle where G4 is there is going to be the 30 degree one angle, and angle N is going to be the 60 degree angle, and this is right angle 90. So that's a 36 to 90 triangle. I want to get the value of G4P. Is G4P side opposite to 60 degree? So it should be root 3 upon 2 times the hypotenuse, which is 160 upon 3 pi. Is I'm going to get this value in a short while. And then NP का जो value रहेगा वो opposite to 30 degrees है. So it should be half of the hypotenuse. 1 upon 2 times the hypotenuse. So 1 upon 2 times of 60 upon 3 pi. ठीक है, दोनों आंसर निकाल लेते हैं चलो जल्दी से. ठीक है. So if I have this answer root 3 upon 2, make sure that you are also calculating the values. ठीक है, that gives us a good practice of using the calculator. So root 3 upon 2 then multiplies with 160 upon 3 pi. So I'll write upon 3 pi. So the answer comes 14.7021. ठीक है, तो ये आंसर मिला 14.7021. And let's get the value of NP also. So that's 2 and 160. That cancels, you get 80. So 80 divided by 3 and pi. ठीक है, so 3 pi से डिवाइड किया 8.4882. 8.4882. ठीक है, तो अपने को ये दो वैल्यूज पता चल गए. ठीक है ना, we have got the two values. One is of G4P and one is for NP. ये दो वैल्यूज पता चल गया. Now let's understand how to get X4 bar and Y4 bar. ध्यान से देखना, X4 bar Y4 bar निकालना है. ठीक है, मुझे G4P का वैल्यू पता चल गया क्या? G4P का वैल्यू पता चल गया, देखा ना. G4P का वैल्यू मेरे पास है यहाँ पे 14.7021. Look at this. From N, point N देखा सबने, मिड पॉइंट थ्योरम याद है सबको. लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ इट. पॉइंट N ये मिड पॉइंट है. अगर मैंने पॉइंट N से एक लाइन बना दिया पैरेलल, सी आई एम ड्राइंग द पैरेलल लाइन, ये लाइन बनाया है पैरेलल. चलो इसका भी नाम रख देते, चलो NQ नाम रख दिया. ठीक है, NQ बना दिया मैंने. सो कैन यू से शुड NQ बी हाफ ऑफ BM? NQ should be half of BM. Q पता चल रहा है क्या? NQ का N मिड पॉइंट है, ठीक है, और Q ऑब्वियसली मिड पॉइंट आएगा क्योंकि NQ और ये BM पैरेलल हो गया. NQ BM पैरेलल हो गया तो पॉइंट Q मिड पॉइंट हो जाएगा. So this is a line segment joining the midpoints of the two sides and parallel to the third side. Then this side has to be half of BM. और BM हमने निकाल के रखा था, if you remember, BM या MB बोल दो. ये देखो, MB was half of hypotenuse. So MB का value I already had was 40 centimeter. MB का value 40 centimeter था. तो NQ का value कितना हो जाएगा? So 20 centimeter, isn't it? So I will write here directly NQ is going to be half of BM, and this I've got from midpoint theorem. समझा ना? So I'm trying to make best use of the space available. So when you start copying the solution, make sure that you copy it very properly. So midpoint theorem use कर रहा हूँ मैं. NQ का value हो गया half of BM, so which is going to be BM was 40 centimeter, so NQ is going to come 20 centimeter. Now students, can you tell me if I do the addition of NQ plus G4P, NQ plus G4P कौन आएगा? Y4 bar. देखा ना, Y4 bar क्या हो गया? It is G4P plus NQ, that is Y4 bar. So students, what I'm going to do here is, जो हमारा तीसरा डायग्राम है, ठीक है ना, जो तीसरा डायग्राम है जो कि एक सेमी सर्कल था, जो कि इंक्लाइंड था, उसका सबसे पहले तो एरिया लिख देंगे. तो A4 बोल दूंगा मैं. सेमी सर्कल है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? पाई r² अपॉन 2 हो जाएगा. रेडियस मुझे पता है, रेडियस 40 दिया हुआ है इसका. So 40 का स्क्वायर divided by 2. So I'll be getting that 1600 divided by 2. You simply get 800. So I'll write 800 pi centimeter square. Then I need to write X4 bar. ठीक है, निकालेंगे X4 bar. We have to find the X4 bar का value here, isn't it? But have you got Y4 bar का value? People, isn't it? Y4 bar का value पता चल गया. And Y4 bar का value is NQ plus G4P. NQ plus G4P. NQ plus G4P. So NQ का वैल्यू हमको मिला है. NQ का वैल्यू कितना मिल चुका है हमको? NQ का वैल्यू 20 सेंटीमीटर. So I will write 20 here.
प्लस G4P का वैल्यू हमने कितना निकाल के रखा था, G4P का वैल्यू हमने 14.7021 निकाल के रखा है, that's 14.7021. So 20 plus 14 that gives me 34.7021 centimeter. So y4 बार पता चल गया, finally x4 बार निकालना है. So again pay attention, I want to get x4 बार, ये बड़ा वाला डिस्टेंस है यहाँ पे, x4 बार चाहिए मुझे, ठीक है ना. तो अभी x4 बार अगर मुझे निकालना है तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है. डिड यू गेट द वैल्यू ऑफ np? np का वैल्यू है मेरे पास, समझा ना. np का वैल्यू कितना है 8.4882. ये np का वैल्यू, छोटा डिस्टेंस np. अच्छा np में mq अगर ऐड कर दिया मैंने, डू यू नो दैट q वाज द मिड पॉइंट? इफ यू रिमेंबर ये पॉइंट q कौन था? पॉइंट q वाज द मिड पॉइंट, isn't it? मिड पॉइंट ऑफ am. am का वैल्यू है क्या हमारे पास? देखो हमने am का वैल्यू निकाल के रखा है 40√3. इसका मतलब है mq का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये जो mq है, mq का वैल्यू it will be half of am. So mq का वैल्यू is 20√3 centimeter. Did you understand? np का वैल्यू ये मिला 8.4882. mq का वैल्यू 20√3 centimeter. And what about om का वैल्यू? It is already 40 centimeter. So tell me what is om plus mq plus np? om plus mq plus np, is it nothing but your x4 bar? समझा ना. तो x4 बार क्या लिखेंगे? So x4 bar is going to be om plus nq and plus np. So let's put up all the values. om was 40 centimeter. mq का वैल्यू 20√3, it was 20√3, and plus np का वैल्यू it was 8.4882. So let's get the value of this also. So we have 40 and then plus 20√3. So let's add it. Make sure that you are also using the calculators. 20√3 and then plus 8.4882. So the answer comes 83.1292. ठीक है, 83.1292. 83.1292. Isn't it? So that's the value of x4 bar. सबको समझा? x4 बार भी पता चल गया, y4 बार भी पता चल गया. पहले हमने सारे बाकी के सेंट्रोइड्स निकाल के रखे हैं. So can I at the end write the formula for the ultimate centroid of the entire shape, the composite shape that was given to me? So x bar is going to be summation of ai into xi upon summation of ai. So that's a1 into x1. So you already know the formula now, isn't it? It's a1x1 plus a2x2 plus a3x3 and plus a4x4. Now why every time plus came? Because all the areas need to be added, isn't it? सारे areas मुझे add ही करने हैं, तो सारे areas positive रहेंगे. Entire diagram was in first quadrant. So a1 into x1, so that's 1600 into 20, then plus 800√3 into this value, 800√3 into 63.1, and then plus 400 pi into 160 upon 3 pi, 400 pi into 160 upon 3 pi. ठीक है. उसके बाद लास्ट वाला a4 is 800 pi into this value, so plus 800 pi into the final value was 83.1292. 83.1292, and this entire thing gets divided by the sum of the areas, that's 1600 plus 800√3 plus 400 pi plus 800 pi. ठीक है. So we'll do this calculation in a short while from now. So whatever terms you can cancel, please cancel it out. So pi में cancel कर सकता था, वो थर्ड वाले एरिया में ये x बार हो जाएगा. Likewise हम लोग get y बार also. ठीक है. So इस बार a1 into y1 कर देंगे, मतलब 1600 into 20. So I'm going to get this directly. Let's get x bar value first, and I'm going to get y bar directly. I know the formula. It is summation of ai into yi upon summation of ai. So students, हम लोग get this value directly. ठीक है. पहले ये वैल्यू निकाल लेते हैं.
तो आंसर मुझे मिलेगा. Please do your calculations so that you can cross check the answers. So it is 1600 into 20, then plus 800 root 3 into 63.1, then plus I have cancelled the pi and pi, so it is 400 into 160 divided by 3, ठीक है, and then plus again 800 pi multiplies with 83.1292, ठीक है. You have a numerator divided by the denominator which is 1600 plus 800 root 3, then the next one is plus 400 pi, so plus 400 pi and finally plus 800 pi. You would have written directly 1200 pi also. Close the bracket. Your answer comes 51.7639. So 51.7639 is the answer of X bar. 51.7639 centimeters. So that's X bar, people. Let's get Y bar ka value also very quickly. So we'll do it directly. So all areas multiply with the Y coordinates. ठीक है. तो सबसे पहला कौन सा एरिया है? 1600 multiply with the Y bar का value which is 20. Then plus 800 root 3. 800 root 3 multiplies with the Y bar ka value which is 40 upon 3. 40 upon 3, and then the next one is plus 400 pi. Plus 400 pi. It multiplies with the Y bar ka value which is 57. And then finally plus 800 pi multiplies with sorry 34.7021. 34.7021. I've got some answer that will get divided by the sum of the areas. So you can do one thing, you can add all the areas together and keep the final value here. वो भी करके रख सकता है, so that you can use it directly in the formula. So I'm going to sum up all the areas. So that's 1600 and then plus 800 root 3. 800 root 3 and then there was 400 pi and 800 pi. So together it becomes 1200 pi. So I'm going to make use of the 1200 pi over here. Close the bracket. You'll get your answer as 30.98471. ठीक है? 30.9848, which can be approximately written as 31 centimeters. So students, have you understood both the questions on centroid? They were very important questions on centroid. Getting? I want you to practice these questions very properly one more time at home. ठीक है, and try and do some more examples on your centroid. Is it okay? Start copy.